Welcome in the class of communication skill. Dear students, today we are going to study about communication. What is communication? So as you already use this term communication, what does it mean? So first of all we will discuss about what is communication. And communication is very important aspect of our life, of our daily life. Okay, Yeah, ma'am. so everyone need it, and every time we need to communicate something to others. So what is this? Everyone need it and want it, but what exactly communication is? Let's try. ठीक है कि जो हम कहना चाहते हैं वैसे कन्वर्सेशन हो रहा है या नहीं. मीन्स समटाइम्स वी वांट टू से समथिंग एल्स और हम कुछ और बोलते हैं, तो दैट इज कम्युनिकेशन? नो, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन. So there should be proper. What is communication? In this figure you can see, like here there are two, one girl and boy, so one is communicating to other, like the sender, like where are you going? Okay, if someone has asked, boy has asked from girl, where are you going? In the figure you can see another girl that is replying, I am going home. Okay, so what boy is doing, he is asking for information. Okay, and girl is replying, giving information, I am going home. So boy is asking for information. तो उसे क्या चाहिए? एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो तुम. और वो गर्ल इज रिप्लाइंग, वो क्या कर रही है? सी इज गिविंग द इन्फॉर्मेशन. तो वन इज हियर, वन इज द सेंडर एंड अदर वन इज रिसीवर. लेकिन क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, वेयर आर यू गोइंग. सो ही आस्क्ड इज ऑल्सो रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन. सो यहाँ पे वो सेंडर है, he has asked the question, then she received the question and reply has given the information also. So both of them have supplied the information. तो एक बार सेंडर और एक बार रिसीवर. तो इस तरह से आप देख सकते, दिस इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ओके, so this is the communication process. Somebody asks about information, another one gives the information, and communication complete if anybody reply appropriately. If we do not reply, communication doesn't happen at all. So in this figure you can see there should be communication, clear cut communication, and we should ask clear cut questions very clearly, means what we want to ask. Okay, but most of the time we do the use this talking, and we do not ask the direct questions. Okay, like sometimes we intermingle in the talking. जैसे दूसरों को हम इंगेज कर लेते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि कहाँ जा रहा है वो. लेकिन हम क्या करेंगे, उसके लिए यूजलेस टॉकिंग करेंगे, दैन हम पता लगाते हैं कि वो कहाँ जा रहा है. ठीक है, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, दैट इज़ नॉट ए डायरेक्ट कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे हमने देखा. So in this figure you can see communication is the sharing of information between two and more individuals or within the group to reach a common understanding. So that is the sharing of information to reach at the common understanding. Now both of them have understood. Okay, so whenever we are talking with anybody, there should be development of common understanding. Means दोनों को वही समझ में आया जो कहा. जैसे एक ने जो भी कहा दूसरे को वही समझ में आना चाहिए. ठीक है, और दूसरे ने जो कहा वो पहले को समझ में आना चाहिए. सो दिस इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग. सो एवरीबडी वन शुड अंडरस्टैंड द what is being said exactly. Okay, and we should reply what is being asked. The word communication come from Latin word. Okay, here it is written, this is the communicare, meaning to share. Latin word communicare. What is the meaning of communicare? Meaning to share. Okay, so this is the meaning. Now you have understood what is communication. Communication is the sharing of information between two or more individuals, okay, within the groups to reach common understanding. So sometimes we talk with our friends, that is the two, only we are two people. Sometimes we talk in the groups, like in the family, that is a group. So communication comes from the Latin word communicare, meaning to share. Now it is clear, definition is clear, and from the figure it is clear.
we ask the question and somebody reply. So here the boy has asked the questions and girls has replied. Boy has asked the question, where are you going? And girl has replied, I am going home. Okay. So this is the communication process, and you can draw this figure in the examination also to show. Okay, now it is clear what is communication. If you are able to screen, you can read it from the screen also. Okay. So this I am teaching you from the NCERT notes. Okay. So these are very easy notes, and you can use these notes for the examination also. These are the short notes. Now, यहाँ तक ठीक है? Have you understood? Yes. Okay. Now come to the. Okay. So communication you have understood, और communication में एक sender होता है, एक receiver होता है. तो हम दोनों ही जब बात करते हैं तो क्या होता है, समटाइम्स वी बिकम सेंडर, समटाइम्स वी बिकम रिसीवर. और वो कम्युनिकेशन इफ वी अंडरस्टूड क्लियरली देन कम्युनिकेशन बिकम सक्सेसफुल. नाउ मैम मिड टर्म में यही आएगा केवल. मिड सेम में कम्युनिकेशन तो आएगा ना, पूरा कम्युनिकेशन आएगा. ठीक है. तो कम्युनिकेशन का मीनिंग ये भी है कि हम वी कैन शेयर द इंफॉर्मेशन, वी कैन शेयर अवर आइडियाज. दिस कैन ऑल्सो बी ए कम्युनिकेशन. ठीक है. सब तो चीज़ें हैं कि हम इफ़ेक्टिव कैसे करें, दैट इज़ अनदर थिंग. हम कैसे इफ़ेक्टिव करें उसे. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा वो एक अलग चीज़ होगी. तो अभी तो आज हम लोग समझ रहे हैं कि कम्युनिकेशन ही क्या होता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग प्रेजेंट नहीं थे, छूट गया उनका, इसलिए हम लोग फिर से रिवाइज कर रहे हैं इसको. Some history is also given here actually. Okay, introductory. So now here in these notes we can see some more information about communication. Okay, so communication process क्या है, basic element of communication process the defined concept. So क्या क्या होता है उसमें. So communication है क्या, our ability to communicate and the different forms our communication takes are very often taken for granted. What does it mean? कि हम कुछ और बोलते हैं और सामने वाला कुछ और समझ लेता है. हम ज़्यादा बातें करते हैं तो वी हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड, कोई हमारी बात ध्यान से नहीं सुनता है, ऐसा भी होता है. सो ये दिस इज़ अवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट and the different forms our communication takes are very often taken for granted. So the communication process is fundamental for human survival. So we need to know about what is correct communication, whether we are at home, whether we are at our workplace. It is essential to the development of the individual. So whether we are at home or we are working at our workplace, so it is essential for our development, to the formation and continued existence of groups. Because if we want to live in the group, so we need to communicate effectively. We need to communicate our ideas, our information, and to the interrelations among groups. Means different families also have the relationship with each other, different groups also have the relationship with it. So this is important. Communication is as old as human history. Many indicators prove that effective communication is the main factor enhancing civilization through history. Like in the history also you have studied like Harappan civilization, and there is a different civilization like Indus Valley civilization. So people have done so many things like rainwater harvesting system, and they have made the structure of city, Nagar Vyavastha. So communication was useful, how they communicate with each other. So there is a so we can understand multicultural phenomena like ancient Greek, ancient Egyptians, ancient Chinese, Arabs, European, Americans have got their impact on the communication. So you must have read on the history like different people came to India, then okay, and they have been mixed up with each other, and in that way the different societies, different groups have been arisen. So that leads to the formation of different groups. What you have seen today in the India, we have different kind of group, and due to the intermixing of the different like Greek, Chinese and
So within India also you can see the different types of tribes and different kind of people, and there is a diversity of the all color races or okay, and that is the beauty of India. Within the India we can find out diversity in the state, diversity in the culture. The still within the India we have, we should be proud of that. ओके सो इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि कोई अलग अलग तरह के कल्चर हैं, अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है, लेकिन वो सब एक है। और दैट इज़ वो किस लिए हुआ, क्योंकि एक गुड कम्युनिकेशन, एक इंडिया का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था सभी से, लोग यहाँ आते जाते रहते थे, तो एक तरह का बिजनेस ट्रेड और सभी कुछ काफ़ी अच्छा था। सो वाई दिस हैज़ हैपन, दैट इज़ ऑफ बिकॉज ऑफ गुड कम्युनिकेशन। ऑन द अदर हैंड the study of the human communication is interdisciplinary. You can communicate if you have normal knowledge. अगर आपको थोड़ा थोड़ा पता है सब चीज़ों के बारे में तो you can talk, आप बात कर सकते। It began with the mathematical theory of communication by Claude E. Shannon और Warren Weaver in the 1949. 1949 में these two people have tried to define, बताया मैथमेटिकल थ्योरी दी थी उन्होंने कम्युनिकेशन की, कि अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द मैसेजेस दैट इज द ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडिया ऑन द टेलीफोन। इस तरह से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है जैसे हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। हाउ द इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, मीन्स 100% ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। लाइक अगर हम मीडिया की बात करें या फिर वायरिंग भी हम कुछ भी यूज़ करते हैं तो 100% ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, ये शैनन ने बताया था। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इट डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन मीडिया विच वी आर यूजिंग। जैसे कि वी आर टॉकिंग ऑन द टेलीफोन और वी आर कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली, सो इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑल्सो, व्हाट मीडियम वी आर यूजिंग फॉर द कम्युनिकेशन। तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन मीडिया ऑल्सो। ओके, and whether we are watching the video, like I was showing you the video, some of you are able to understand, but it depends on my how I'm giving you the information, so sometimes you are not able to listen, so it depends on the medium, what medium I am using. Okay, and sometimes there is a noise in the medium, so Shannon has described there, if there is a more signal to noise ratio, सो दिस विल अफेक्ट द कम्युनिकेशन। उन्होंने बताया कि जो नॉइज़ ज़्यादा है तो इट विल अफेक्ट अवर कम्युनिकेशन और प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे लाइक आई एम टीचिंग यू, सो देर विल बी नो 100% ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, कि प्रॉपर जो पूरा 100% ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, लेकिन 1 to 1 टॉक कर रहे हैं, इफ़ ओनली वी 2 persons आर टॉकिंग, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा होता है। ये भी डिपेंड करता है कि हम सुन कैसे रहे हैं, मतलब वेदर वी आर लिसनिंग, एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस है और अगर वहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं है तो कम्युनिकेशन पे अफेक्ट होता है, यही शैनन ने बताया था। तो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्पीच कम्युनिकेशन, हाउ वी आर टॉकिंग, इन सब पे भी डिपेंड करता है। साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि हाउ आई एम, मेरी साइकोलॉजी क्या है जब मैं बता रही हूँ, कि मेरा ध्यान कहीं और है, या इट डिपेंड्स ऑन द लिसनर ऑल्सो कि वेदर ही और शी इज़ लिसनिंग केयरफुली और नॉट, उसका इंटरेस्ट है या नहीं। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं कम्युनिकेशन को है। और सोशियोलॉजी होती है कि किन लोगों के बीच में हम बैठे हैं, वी हैव गुड, कैसा कम्युनिकेशन है, अपने जान पहचान के लोगों में बैठे हैं, वी कैन कम्युनिकेट ईजीली। और कुछ लोग को हम नहीं जानते हैं तो पॉलिटिकल इफेक्ट भी होता है, कहीं कहीं पे मेजोरिटी में जो लोग कह रहे हैं हम उसी बात को मानने लगते हैं। सपोज इन द मॉब, वहाँ पॉलिटिकल इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। इन द सराउंडिंग वी कैन सी द पीपल आर टॉकिंग ऑन द सेम टॉपिक, सो why this is occurring, this is because of political effect, like the majority में what they are talking, तो generally क्या होगा कि you will talk about that, और अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान है तो they won't listen। तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी होता है कि हमारी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, लाइक फैमिली, जो उनके काम की चीज़ें हैं या जो उनके यूज़ की चीज़ें हैं। ठीक है, उन्होंने बताया था कि मतलब बाकी जो नॉइज़ होता है एनवायरनमेंट में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कम्युनिकेशन पे, और ये सच भी है। जर्नलिज्म का इम्पैक्ट होगा कि किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है, एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट, एजुकेशन, दीज आर ऑल द डिफरेंट फील्ड दैट आर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन। इस सब में इनका एप्लीकेशन भी है सारे फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड, और हाउ टू बी कम्युनिकेट,
किस तरह हम सोसाइटी बनाते हैं, और आप अपनी सराउंडिंग में देख ही रहे हैं किस तरह से ग्रुप बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के बहुत स्कोप है। सो इट इंटरेक्ट, मतलब कम्युनिकेशन हर चीज़ का हिस्सा है, कोई भी सब्जेक्ट इससे अलग नहीं है, ठीक है। नाउ यू कैन थिंक ऑफ हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। सो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि दीज वर गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट। अब इसमें से जो हम थोड़ा सा लाइक बार्सेलसन और स्टीनर उन्होंने बताया था। बार्सेलसन एंड स्टीनर डिफाइन कम्युनिकेशन एज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस, skills through the use of symbols, words, pictures, figures and graph. So you can see this definition include everything. I think इस definition को आप ले सकते हैं, ये भी एक अच्छी definition है। What the Burson and Steiner define in communication as the transmission of information, ideas, emotions, skills through the use of symbols, words, pictures, figures and graphs. Okay, so anybody can communicate about their information, what information we are giving. Okay, like I am feeling hungry, so I can give this information to my family member so that I can get the food, है ना। I am feeling hungry, give me food. मैं ऐसे कहूँगी अगर कि मुझे भूख लगी है, तो सामने वाले को क्या मैसेज जाएगा कि मतलब भूख लगी है तो अब मुझे खाना बनाना है, उसे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। आइडियाज़ हम दे सकते हैं। आइडिया में हम कह सकते हैं कि वी कैन गिव आइडिया, यू कैन कुक मैगी और नूडल्स इमीडिएटली बिकॉज आई एम फीलिंग हंग्री। तो आप आइडिया दे सकते हैं जो जल्दी से बन जाए वो खाना मुझे बना दो, ऐसा। तो ये आइडिया होता है कि जहाँ पे पूरा परफेक्शन नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर फीलिंग हंग्री, वी नीड फूड। तो अगर हम ये बता देते हैं कि हम हंग्री हैं, तो ये राइट कम्युनिकेशन हो जाएगा, दिस द करेक्ट कम्युनिकेशन। और हम आइडिया भी दे सकते हैं, भाई ये चीज़ बना दो जल्दी से जो बन जाए। तो ये आइडिया हम यूज़ कर रहे हैं अपना, कि हम ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं कुछ, है। इमोशंस भी अपने हम शो कर सकते हैं, वी शो इमोशन, वी कम्युनिकेट। इमोशंस में क्या आता है कि इफ़ आई एम सैड, इफ़ आई एम फीलिंग हैप्पी, सो वी कैन कम्युनिकेट दीज इमोशंस टू अवर फ्रेंड्स। और स्किल्स को कम्युनिकेट करते हैं, हमें कुछ आता है, काम करना आता है। जैसे स्किल का कम्युनिकेशन क्या है, इफ समबडी इज़ मेकिंग फूड फॉर अस, तो वो भी स्किल्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं। लाइक यू आर द एक्सपर्ट इन इलेक्ट्रिकल वर्क, सो यू कैन, आप किसी का कोई काम कर सकते हैं क्योंकि आप उसमें स्किल्ड हैं, तो देन यू कैन कम्युनिकेट। हाँ, इफ़ समबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, कोई कह रहा है मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो यू कैन गिव द बेटर सजेशन इन दैट, एंड यू कैन कम्युनिकेट थ्रू योर स्किल्स ऑल्सो कि आई नो दिस वर्क, आई कैन डू दैट, मैं ये जानता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तो ये स्किल का कम्युनिकेशन हो जाएगा। थ्रू द यूज़ ऑफ सिम्बल्स, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, थ्रू द यूज़ ऑफ सिम्बल्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, फिगर्स एंड ग्राफ। तो ये कम्युनिकेशन है कि आप बताएंगे बोल के कि आई कैन डू दैट, वर्ड्स का यूज़ करेंगे, आई विल डू दिस वर्क, इसको मैं कर दूंगा। या पिक्चर दिखाएंगे, कोई पिक्चर शो करके दिखा सकते हैं। किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम व्हाट्सएप से पिक्चर भेज देते हैं, कि हमें टाइम नहीं है तो फ़ोटो भेज देते हैं, इनविटेशन कार्ड भेज देते हैं, इस तरह से करते हैं। तो पिक्चर्स को हम यूज़ करते हैं, या जो स्माइली यूज़ करते हैं उसको भी हम अपने इमोशंस को शो करने के लिए स्माइली भी यूज़ करते हैं। फिगर्स वी कैन यूज़, जैसे आपको इलेक्ट्रिकल वर्क करना है, उसकी ड्राइंग भी बनती है ना, फिगर्स बनाते हैं उसको, ग्राफ से भी शो करते हैं। वी एनालाइज द डेटा, और कई बार हमें उसे पेपर पे, वी नीड टू राइट डाउन ऑन द पेपर, कोई चीज़ कम या ज़्यादा मैथमेटिकली, उसको भी हम दिखाने के लिए ग्राफ का यूज़ करते हैं। वी यूज़ द हिस्टोग्राम लाइक फॉर द ग्राफ ऑफ द हाइट, हाँ, ग्राफ से शो करते हैं। फिगर से भी शो कर सकते हैं, जैसे फील्ड वर्क को हम कई बार फिगर से दिखाते हैं समझाने के लिए अपने हेड्स को, या जो अपने सीनियर अथॉरिटी हैं, तो उनको हम कैसे समझा सकते हैं, जो भी है। सो दिस ऑल कम, तो इससे क्या लगता है, जो बर्सन और स्टीनर की जो मेनिशन है, इसको हम एक कंप्लीट भी कह सकते हैं एक तरह से। और भी लोग हैं, रोगर्स इज कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन एंड एटीट्यूड। इन्होंने ये कहा है, फ्रॉम द सोर्स टू ए रिसीवर फॉर
पर्पस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग विद इंटेंट। कभी कभी हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं बट और हमारा कुछ है अंदर कोई इच्छा होती है ना, उस तरह से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। बट कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली दैट। इस तरह से हम देखेंगे तो ऊपर वाली डेफिनेशन दैट इज़ मोर करेक्ट, कंप्लीट है वो। कम्युनिकेशन में ये तो है ही कि हम चाहते हैं कि कुछ हमारे अकॉर्डिंग काम हो, इसलिए हम कम्युनिकेट भी करते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारी बात माने सामने वाला। तो इस तरह से देखें तो रोगर्स का कहना भी ठीक है, वो भी ये कहना चाह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडिया इन्फॉर्मेशन एटीट्यूड फ्रॉम द सोर्स टू ए रिसीवर फॉर द पर्पस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग विद इंटेंट। तो मार्केटिंग कंपनी क्या करती है, वो यही करती है, वो जो चाहती है वो करती है। मिस कस्टमर बनाना है तो वो उस तरह से बात करते हैं फिर। हाँ, उनका जो पर्पस होता है क्या, वो दिख जाता है। वो फ़ोन करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी और ये सब के लिए, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। तो कंपनीज के देखिए तो ये डेफिनेशन ठीक है। हाँ, और हमारा भी पर्पस होता है, हम कब किससे बात करते हैं, हम चाहते तो यही है ना सामने वाला हमारी बात मान ले बस। और कई बार हम कम्युनिकेशन में डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं विच इज़ वेरी बैड, बिकॉज लिसनिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ। तो रिसीवर को हम इन्फ्लुएंस में लाने की ट्राई करते हैं। वी ट्राई टू इन्फ्लुएंस द रिसीवर। कार ने क्या कहा था, डिफाइन कम्युनिकेशन एज ऑल दोज प्लान्ड और अनप्लान्ड प्रोसेसेस थ्रू विच वन पर्सन इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ अदर। तो हम प्लान कर लेते हैं, कई बार दूसरे पे इन्फ्लुएंस ही लाना होता है, और कभी हम अनप्लान्ड होता है। अनप्लान्ड वी आर टॉकिंग विद अनदर पर्सन, और जब हम अनप्लान्ड करते हैं इसको तो कई बार लड़ाई भी हो जाती है, फाइट हो जाती है। हम दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारी प्लानिंग है तो वी कैन बिकम सक्सेसफुल। और कभी कभी तो अनप्लान्ड अच्छे से भी हो जाता है, ऐसे भी होता है। ओके, सो मोर टॉकिंग वी डू किस लिए करते हैं, टू इन्फ्लुएंस द अदर, या दूसरे से हमें काम कराना है तो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, सो आई एम टीचिंग यू बिकॉज जो पढ़ाई करें इसको, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इनको याद कर लें। तो ये मेरा पर्पस होता है कि मैं आपको इन्फ्लुएंस करने का, आई विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू, कि आप इसको याद करें, पढ़ें, एग्ज़ाम के लिए तैयार करें। तो दीज आर द डिफरेंट डेफिनेशंस, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडिया। अब कॉम्प्रिहेंसिवली हम देखें सारी डेफिनेशन, तो a more comprehensive suggested definition to define communication would be a process of transmitting ideas, information, attitudes. Attitudes क्या है, like attitudes images which we have formulated for ourselves. और हमारा एटीट्यूड होता है ना, जैसे हमने बना रखा है कि उसने ऐसे, जब मैंने कुछ कहा उसने ऐसे कर दिया था, उसका एटीट्यूड ऐसा था। तो ये हम बना लेते हैं ना, by the use of symbol, words, pictures, figures from the source. So he is the originator of the message to a receiver. तो एक originator है और एक receiver। तो receiver किस तरह रिसीव करेगा, कई बार तो हम पहले वाले पर्सन के लिए अपना आइडिया फिक्स कर लेते हैं, उसने एटीट्यूड हो। लेकिन राइट कम्युनिकेशन क्या है, जब हम चीज़ों को वैसे देखें जैसा वो है, एज इट इज़। ओके, so what is communication? A process of transmitting idea, information, attitude by the use of symbol, words, pictures, figures from the source. So here we can see, इसमें जो स्टीनर, बर्सन और स्टीनर है, उनकी डेफिनेशन दी हुई है, उसी का पार्ट ज़्यादा लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। सो कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड एज ए प्रोसेस थ्रू विच सेंडर रिसीवर ऑफ द मैसेज इंटरैक्ट इन ए गिवन सोशल कॉन्टेक्स्ट। एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, लाइक वी आर टॉकिंग विद माई फ्रेंड, और आई एम टॉकिंग विद माई टीचर, आई एम टॉकिंग विद माई सन or mother, husband, wife. So these are the interaction in social context. और जिनसे हम नहीं जानते, कई बार उनसे भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा वो काम के लिए होता है, किसी न किसी काम में हम बात कर रहे होते हैं, वेदर दे आर आवर कस्टमर। तो सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ये देखेंगे तो डेफिनेशन हम कहाँ से लिए, जो सुटेबल डेफिनेशन है वो किसकी आ रही है, सन और स्टीनर। तो इनकी डेफिनेशन का पार्ट ज़्यादा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे लगता है अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अब हियर यू कैन सी कम्युनिकेशन के हम कंपोनेंट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो
Depending on the previous definition, we can conclude the communication process used to timely and properly exchange information between sender and receiver to achieve a desired goal. एक हमारा goal होता है, whenever we are talking with anybody, we have a goal. Okay. So this is a process. Communication is a process used to timely and properly exchange information between a sender and a receiver to achieve a desired goal. Like sender is sending information and she's thinking, then feedback is given. So in the figure you can see the elements of the components of communication. What are these? Sender, receiver, message, feedback. So these are all 4 elements of communication. Sender, receiver, मैसेज, फीडबैक. ओके. और हमने किसी से कुछ कहा और रिप्लाई नहीं आया तो हमें तब भी कम्युनिकेशन जैसा मीडियम होता है वो भी तो कंपोनेंट कहलाता है. अभी हम लोग आ रहे हैं, अभी तो हमने यही बात की ना. तो ये मैसेज, ठीक है. देखिए फीडबैक आना ज़रूरी है. हमने किसी को मैसेज दिया तो फीडबैक आना चाहिए, ठीक है. कभी कभी हमें चाहिए टेलीफोन, कभी कभी हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं. तो मैसेज हमने दिया, इफ़ शी डिडंट रिप्लाई तो फीडबैक नहीं मिला तो सेंडर सोचेगा इसने सुनी नहीं मेरी बात या नहीं समझी. तो फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट. ये इम्पॉर्टेंट है. सेंडर और रिसीवर का होना इम्पॉर्टेंट है. मैसेज का होना भी ज़रूरी है. और फीडबैक नहीं है तो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा. लेकिन वन वे कम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं. कम्युनिकेशन का मीनिंग है यहाँ से यहाँ गई बात और वहाँ से यहाँ आई वापस. फीडबैक भी आना चाहिए उसमें. लाइक आई एम टीचिंग यू, तो आप लोग बीच बीच में बात कर रहे हैं या आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो नहीं पता चलेगा मुझे. हाँ, ठीक है. कम्युनिकेशन कंपोनेंट. सो दीज एलिमेंट्स आर नेसेसरी. अगर नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है. सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड फीडबैक. और वो जो भी आपके जो वैसे कंपोनेंट है एलिमेंट्स, उनको हम पढ़ेंगे. वो एलिमेंट्स में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा. दीज आर द कंपोनेंट्स. अब देखिए कम्युनिकेशन, ठीक है. देखो ये है सोर्स, एनकोडर, मैसेज, डिकोडर, फीडबैक, डेस्टिनेशन. तो ये पूरा शैनन ने जो है एक मॉडल बनाया था, उसमें ये चीज़ें आ रही हैं. और जो आप बात कर रहे हैं कि हम इसमें सब आ जाएगा. चैनल भी आ गया. एक चैनल होता है जो मीडियम होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि कहाँ, जैसे हम टेलीफोन से बात कर रहे हैं या डायरेक्ट कम्युनिकेशन से कर रहे हैं तो दैट विल कम इन दिस. ठीक है. ये पूरा प्रोसेस है. यहाँ पे आप देख सकते हो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल. ठीक है. इसको हम लोग आगे भी डिस्कस कर सकते हैं. अभी आप बताइए आप लोगों को इतना समझ में आया. ये डेफिनेशन पे था और ये सब क्लास में भी हो चुका है लेटर ऑन. तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं. तो ये दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. मैसेज, फीडबैक, सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड फीडबैक. कि हमने किसी से कुछ पूछा तो रिप्लाई आना चाहिए कि क्या है, तब समझ में आता है. तो आगे फिर बात होगी, फिर कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रोसीड कर जाएगा. ठीक है. और कोई रिप्लाई नहीं है और कई बार हम लोग कई दिन रिप्लाई करने में लगा देते हैं, फ़ोन का रिप्लाई करने में या कुछ, तो वहाँ से कम्युनिकेशन थोड़ा ब्रेक हो जाता है. लेकिन हम लोग की लाइफ आजकल ऐसी हो गई है कि ऐसा हम लोग को करना भी पड़ता है. मतलब हर पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है. तो दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि पूरा दिन काम करते हैं तो उसमें तो जो हमारे एग्जैक्ट इस फेयर में या सोशल, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा. जो हमारा वर्किंग एटमॉस्फेयर है, जितना भी करना है वो तो करना ही. तो ये है प्रोसेस यूज टू टाइमली एंड प्रॉपरली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल. एक हमारा गोल होता है जब हम किसी को फ़ोन करते हैं, तो एक हमारे अंदर गोल होता है कि हमने किस लिए फ़ोन किया है. तो वो हमें पता होना चाहिए कि हम वाई वी आर कॉलिंग अनदर पर्सन. अब थोड़ा सा हम बात करने के बाद बता देंगे उसे कैसे. जैसे हमारे रिलेशन में तो पहले हम कुछ और बातें करेंगे, फिर हम कहेंगे कि हमने इसलिए फ़ोन किया था. बट क्लियर मैसेज होना चाहिए. समटाइम्स इट इज़ कभी कभी क्या होता है प्रॉपरली नहीं सुनी जाती है बात. जब हमारे रिलेशन बहुत बहुत क्लोज रिलेशन में भी हम ऐसा करते हैं कि सामने वाला प्रॉपरली ना ध्यान दे उस बात पे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं
एक बहुत सारी बात करके बीच में उसको कहेंगे जो काम की बात है, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो डिज़ायर्ड गोल को हमें ध्यान रखना है, जब भी हम किससे बात कर रहे हैं, हम किस लिए बात कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, मतलब मेन बात को एम्फेसाइज करना होगा। और बाकी चीज़ें भी, बातें भी कर सकता है इंसान, लेकिन मेन जो चीज़ है उसको हमें एम्फेसाइज करना होगा। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। और प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि इट डिपेंड ऑन द प्रोसेस। और दूसरा है इंटरेक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज। द प्रोसेस स्पेसिफाई इंटरेक्शन और लिंकेज बिटवीन अमंग काउंटलेस फैक्टर्स। तो फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे क्या क्या फैक्टर हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, हमने फ़ोन किया, कहीं पे बाजा बज रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं। और ये भी फ़र्क पड़ता है कि हम किस मूड में हैं उस टाइम पे, या हमारी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो क्या है, या हमने जिसको कॉल किया उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है। वो हम लोग एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे कि कितने बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन के। दैट विल कम इन द another class. The concept of interaction is central to an understanding of the concept of processing communication. So communication is an attempt to bridge the gap between two individuals through producing and receiving messages which have meaning for both. तो एक तरह से हम देखेंगे तो ये it reduce the gap between, it is try to bridge the gap between the two individuals. दो लोगों के बीच में गैप को मिनिमाइज करता है थ्रू प्रोड्यूसिंग रिसीविंग मैसेजेस विच हैव मीनिंग बोथ, जो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल कॉन्टेक्स्ट। ह्यूमन कम्युनिकेशन इज टू ए ग्रेट एक्सटेंट इन्फ्लुएंस बाय द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट अकर्स। द कॉन्टेक्स्ट और द सिचुएशन दैट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न द ओरिजिन, फ्लो एंड इफेक्ट ऑफ द मैसेज। सोशल कॉन्टेक्स्ट का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इट अफेक्ट सोशल कॉन्टेक्स्ट। Human communication is to a great extent influenced by social context. So it affects social context is very important. Like if we have gone in one party, so we should know how we should talk there. So we should not discuss about the official thing in the social party or any gathering. The context of situation, the context of a set of rules which govern the origin, flow and effect of messages. तो अगर हम किसी पार्टी में गए, फैमिली पार्टी, और वहाँ पे हम ऑफिस की बातें करेंगे तो वहाँ उसका उतना इफेक्ट, मतलब दैट इज़ नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम कर सकते हैं उस तरह की बातें, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। सोशल कंटेक्स्ट बहुत ज़रूरी है कि हम किस रेफरेंस में कहीं पे जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, हम किस रेफरेंस में बात कर रही है, बहुत ज़रूरी है। क्या क्या, और सबसे अच्छा तरीका होता है सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है। इफ़ वी फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर देन इट बिकम्स ईजी। ये सबसे आसान तरीका है, जो सामने वाले को थोड़ा अच्छा लगे और हम जो कहना चाहते हैं वो भी कहें, वो भी हम क्लियरली कह दें। और कई बार तो अपनी बात कहना बहुत ज़रूरी होता है, तो कहना भी चाहिए, तो उसको हम कहें, लेकिन सामने वाले का भी थोड़ा सा देखें। तो हमें देखना पड़ेगा गोल क्या है, हमारी कम्युनिकेशन का गोल क्या है, कि सामने वाले को सेटिस्फाई करना या फिर अपनी बात को, हमारा जो काम है वो करवाना, क्या हमारा गोल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और सोशल कॉन्टेक्स्ट भी बताओ कि हम किससे कह रहे हैं, अपने सीनियर से कह रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस रिलेशन में हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ये। तो वो कुछ ये बेसिक है जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, और बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप बताइए, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। अब इसके फंक्शन इसमें दिए से क्लैरिफाई करता है, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को क्लैरिफाई करना। बात करने से क्या होता है, हर चीज़ आप क्लैरिफाई, मतलब बात करने से आसान हो जाता है काम, हम करें तो पॉइंट आउट करना। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं। जैसे कोई आपको कोई चीज़ बता दे, लेकिन आप बताएंगे कि नहीं नहीं, इस कंडीशन में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, या इसके रीज़न अलग अलग, कारण अलग अलग हो सकते हैं। पॉइंट आउट करना पड़ता है कई बार हमें चीज़ों को। जैसे हमें कोई काम दिया गया और हमने टाइम से नहीं किया, तो हम बताएंगे भाई ये वजह थी, दीज आर द कॉजेज़, और इसमें ये भी चीज़ है, ये भी करना होगा। शो द वेरिएबल्स इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। फिर हम बताते हैं कि भाई अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तरह का अर्बन पॉपुलेशन है, रूरल है, या अलग अलग, उसमें फैक्टर्स भी आ जाते हैं। ये सब बेनिफिट हैं कम्युनिकेशन के। हमें लैंग्वेज हेल्प करती है कि वी कैन पॉइंट आउट सर्टेन थिंग्स, वी कैन शो वेरिएबल्स इन ह्यूमन कम्युनिकेशन।
एंड वी कैन यूज द फ्रेमवर्क इन रिसर्च। ठीक है, तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं एज ए बेटर पर्सन। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल है। हम आपस में बात करते हैं, देन वी मेक रिलेशनशिप, और एक कंपनी बनती है, बिजनेस करते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। हम क्लैरिफाई करते हैं, कहीं पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है। कैसे क्लैरिफाई करते हैं, जैसे कि कोई क्राइम सीन पे पकड़ा जाता है और उसने नहीं किया है, तो वो बोल के तो बता सकता है ना कि मैंने ये काम किया है या नहीं। तो क्लैरिफाई करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। या अपनी बात को कहने के लिए, क्या हम, जैसे मुझे कुछ कहना है तो मैं आई एम टीचिंग यू, मैं क्लास में गई थी तो आज बच्चे वहाँ पे नहीं थे, तो मैंने ऑनलाइन मैसेज भिजवाया फिर कश्यप सर से। तो ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, वहाँ पे सब आ जाए। तो पॉइंट आउट, कंडीशन बताना, मतलब ये सारे यूज़ हैं कम्युनिकेशन के। और आजकल तो फ़ोन आ गया तो हम फ़ोन का यूज़ कर लेते हैं, वो फैसिलिटेट करता है। फ़ोन क्या करता है, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। और अलग अलग कंडीशन में क्या रिस्पॉन्स हो सकते हैं, यू कैन डिस्कस विद द अदर पर्सन। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट वर्क फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। एक सोशल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है एज ए कम्युनिटी। तो इतने सारे हमारे पास कल्चर हैं आज, ग्रीक कल्चर, रोमन कल्चर और ये सब, तो सोसाइटीज़ डेवलप हुई हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आप लोग ये है, इसको भी मैंने रिकॉर्डिंग की है वीडियो की, आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, बिकॉज यू पीपल मिस द क्लासेस। तो कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे हर यूनिट के, सो दैट यू कैन वॉच द वीडियो। जैसे क्लास नहीं की है या छूट गया है तो ठीक है, इसलिए मैंने किया है। नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। आप पूछिए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है, मैम पहले इसको स्टडी कर ले तो फिर समझे इसको, तो फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन कर सकते हाँ, हैं। क्या पूछ रहे हैं बताइए। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अगर आपके पास है कोई तो बताइए। मैम ये मटेरियल स्टडी करने के बाद क्वेरी होगी तो सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप एनसीईआरटी के नोट से पढ़ लीजिए, और बाकी तो इस वीडियो में दिया ही है मैंने आपको, फोटो आप वीडियो से देख लीजिएगा। और ये भी मैंने मैम एनसीईआरटी के नोट्स जो साइट की यूनिवर्सिटी साइट पे मिलेगा जो, हाँ, वो मैंने डाल रखे कैन हैं। संचेस और से। ये जिससे मैं आज पढ़ा रही हूँ दूसरा वाला, ये भी उस पे है। अच्छा अच्छा तो जितना जितना पढ़ाया जा रहा है वीडियो से देख लीजिए, कितना पढ़ाया गया वो आप उस पे देख लीजिए। अच्छा। उस पे थोड़ा और आसान है। मैम एक क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट यू आर आस्किंग? अगर बुक लेना हो तो कौन सा बुक लेंगे? नहीं, किसी एक बुक में सारा नहीं दिया, मेरे पास तो कोई ऐसी बुक नहीं है। मैंने नोट्स आपको दिए ज्ञान संचय पे, उन्हीं से आप पढ़िए। ओके मैम। अरे मैम नोट्स तो मैम इंग्लिश में फुल है, हम लोग को इतनी इंग्लिश आती नहीं मैम। तो देखिए, ये तो आपका जो एग्ज़ाम है ना, इसको तो इंग्लिश में ही देना है ना वैसे। मैम कम्युनिकेशन है, ये सब का परिभाषा तो हिंदी में लिख सकते हैं ना? चलिए ठीक है, आप लिखिएगा, सही डेफिनेशन लिखिएगा। ठीक है। और तो मैम जब पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे, हिंदी के समझ में तभी तो आएगा। हाँ, पढ़िए पढ़िए। स्पीकिंग जो है, तो वो इसीलिए मैं बुक पूछ रहा है कि कोई इंग्लिश बुक हो जिसमें मतलब हिंदी में परिभाषा वैसा लिखा हो, और इसी बुक सजेस्ट मैम आपसे पूछ रहे हैं। ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में बना के दे सकती हूँ। आप जो गूगल ट्रांसलेटर है उससे फाइल यस मैम, यस मैम। हाँ, उससे हिंदी में कन्वर्ट होके आ जाएगी वो, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है ना। ये तो पेपर अभी, नाउ यू हैव टू इम्प्रूव समथिंग, अपने अंदर कोई चेंज भी लाना है ना आपको थोड़ा सा। मैम जो सेंटेंस होंगे वो तो इंग्लिश में लिखना ही है, लेकिन जैसे मैम परिभाषा हमारी अब कम्युनिकेशन की परिभाषा है, अब उतनी इंग्लिश में तो हम लोग नहीं याद कर पाएंगे मैम। अब जो ग्रामर है इंग्लिश के वो सब तो मान लो हैंडल किया जा सकता है। नहीं, समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या थ्योरी है उसको तो हम लोग, आप समझने के लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन डू वन थिंग, पेस्ट द जो टेक्स्ट है मैंने दी है पीपीटी में, उसको कॉपी पेस्ट करिए गूगल ट्रांसलेट में, और वो कन्वर्ट होके आ जाएगी वहाँ पे।
चलिए कुछ अरे मैम हम वो तो करके देखे मैम, उसमें इतनी इतनी हिंदी कन्वर्ट अच्छी से कर देते कि वो हिंदी तक भी नहीं समझ में आती है, क्लिक हो जाता नहीं, अभी अभी ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा इम्प्रूव हो गया है गूगल ट्रांसलेट, पहले जैसा नहीं है। कब किया था आपने? व्हेन यू हैव डन द अभी ट्रांसलेशन? मैम जो मैकेनिकल की किताब थी अभी अभी जो जैसे मैम क्या नाम है केमिस्ट्री में या ड्राइंग का हिंदी में ट्रांसलेट को वो ऐसा ऐसा हिंदी शब्द बता दे रहा है कि उसमें हम लोग कभी सुने भी नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग तो केमिस्ट्री की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, केमिस्ट्री की बुक्स तो अवेलेबल हैं। नहीं केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री की तो अवेलेबल हो जा रही है मैम, जैसे ट्रायल केमिस्ट्री और क्या नाम है ड्राइंग की, ये सब तो हिंदी में अवेलेबल हो जा रही है। उसी तरह हम भी पूछ रहे कम्युनिकेशन की कोई बुक सजेस्ट कर देती जो हम लोग को Okay, okay, समाधान हो पाता। I will see that. Okay, I will try to solve your problem. ओके मैम, ओके। So in the NCERT दे तो only basic definition है, आपने देखा भी था कि उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा दिया है, मैंने आपको अभी पढ़ाया था। और ये क्योंकि हमें अपना क्लास रिकॉर्ड भी करना था, डेफिनेशन पे है पूरा, तो इसमें आ गया है वो। एक दूसरा भी नोट्स है, लेकिन मेन जो है वो जो NCERT वाला है उसमें छोटा छोटा सब दिया है, ठीक है। तो वो बहुत इजी नोट्स है, उनसे तो बच्चे पढ़ते हैं, उस नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा उससे, ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, now you write down your attendance in the chat box, okay, with your roll number. Okay, मैम रोल नंबर नहीं अलॉट हुआ है okay, आप ब्रांच लिख दीजिए, एक मिनट। एक्चुअली में सब इवनिंग क्लास वाले हम लोग हैं। 17, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अपना यू जस्ट राइट डाउन योर नेम और ब्रांच हियर इन द चैट बॉक्स। अपनी अटेंडेंस यहाँ पे दे दीजिए, ब्रांच लिख दीजिए। यस, किशन, राहुल आपने लिख दिया। किशन मोर मनी भूषण इज हियर। यस मैम, यस मैम। हाँ, अटेंडेंस लिखिए अपना भी। तो इस क्लासरूम में सभी जिनके पास वो लिंक नहीं था गूगल क्लासरूम का, आप बाकी सब लोग को दे दीजिए जो छूट गए हैं, जैसे कि, ठीक है। और लिंक क्लास का यही रहेगा सेम, ठीक है। ओके मैम, ओके। आपको एक लिंक मैंने भेजा था, क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए बस सब लोग। गूगल अच्छा मैम, जब आप हाँ, और नोट्स भी मिल जाएंगे उसमें। अगर चाहिए तो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं मैसेज गूगल क्लासरूम पे। और वैसे इमीडिएट मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप ठीक है, वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मैम हम लोग मटेरियल साइंस वाले में नहीं है ना, मटेरियल साइंस अलग है मैम, हम लोग मैकेनिकल के हैं। चलिए Mechanical और एक ग्रुप electrical है है। शायद, उसमें मेरा है, मैं देख लूँगी। लेकिन आप बाकी लोग को ज्वाइन करने के लिए बोल दीजिए जो छूटे हैं। जी। वैसे तो काफ़ी लोग आ चुके हैं, मतलब मैंने देखा यस मैम। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हियर। हाँ लेंगे, इसमें जो है मीन्स 33 स्टूडेंट हैं, तो दैट मीन्स सभी मणिभूषण, सतीश, कुलदीप, असित, अजय, कहानियाँ क्या है, राहुल, सुनील, सूरज, विनोद, विजय, हीरालाल, हिमांशु, सचिन, स्वाति, शुभम, राज, अंकित, किशन, विनय, शर्मा, अंकित, हरपाल, जगमीत, मोहित, नारायण, ज्ञान, रंजीत, रविकांत, आयुष, आशुतोष, शेषनाथ एंड विशाल यादव। इतने लोग हैं इसमें। ओके मैम, ओके। आप लोग की मैं अटेंडेंस